چھوڑیے شہزاد صاحب، میں آپ کو اور آپ کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، اس نے کڑواہٹ سے کہا تو وہ جھٹکا کھا گئے۔ پھر بات بناتے ہوئے پوچھا، تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ امی کی طرف نہیں جانا کیا؟ صبح ناشتے کے بعد وہ اخبار لے کر بیٹھی تھی۔ شہزاد نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ نہیں، آپ آفس جائیں، اس نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ اس کے قریب بیٹھ گئے اور نرمی سے بولے، میرے ناراض ہونے اور نہیں ہونے سے آپ کی سوچ تو نہیں بدل جائے گی؟ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ تم جیسے چاہو گی میں خود کو بدل لوں گا، لیکن پلیز تم ناراض مت ہو مجھ سے۔ تم خوش رہا کرو، غصے سے تمہارا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، یہ خطرناک بات ہے۔ کس طرح خوش رہا کروں؟ اس نے اخبار لپیٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ تمہیں گھومنے چلتے ہیں، آج میں آفس سے چھٹی کر لیتا ہوں، سارا دن تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ اپنا وقت خراب نہ کریں، آفس میں آپ کو بہت سے کام ہوں گے، کام تم سے زیادہ اہم نہیں ہے، اور یوں ہی میں ذاتی کام کو بزنس سے الگ رکھتا ہوں۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا، آپ میری سمجھ سے باہر ہیں۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، دل سے تو باہر نہیں ہوں، شہزاد نے شوخی سے کہا تو وہ شرما کر ہنس پڑی۔ اس روز کے بعد شہزاد نے عثمان حیدر کا نام نہیں لیا اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگے۔ اس کے دل کو بھی سکون ہوا، اور وہ دن ان دونوں کی خوشی کا سب سے بڑا دن تھا جب اس نے اسپتال میں ایک خوبصورت اور صحت مند بچے کو جنم دیا۔ امی ابو، اشعر بھائی، سلمہ بھابھی، رمشا باجی سبھی پھول پھل اور مٹھائی لے کر اس سے ملنے آئے، مبارکباد اور دعائیں دیں، اور شہزاد نے بیٹے کا نام عثمان رکھا تو سوائے ماہا کے سبھی کو حیرت ہوئی۔ یہ شخص مجھے ساری زندگی اسی نام سے تکلیف پہنچاتا رہے گا، اس کی نیت میں شک اور بے اعتمادی بھری ہے، کیسے جیوں گی میں؟ عثمان حیدر، تمہاری اس بے وفائی نے ہمیشہ کے لیے مجھے سولی پر چڑھا دیا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی اور کڑ رہی تھی، لو بھائی، اس کے فیڈر کا ٹائم ہو گیا ہے، سنبھالو اپنے عثمان کو۔ اپنے عثمان کو؟ وہ تڑکی، تو آپ نے اپنی ضد پوری کر لی، میرا ذرا سا بھی خیال نہیں کیا۔ کیوں، اتنا پیارا تو نام ہے؟ وہ انسنی کر کے بولا، نام تو سبھی پیارے ہوتے ہیں مگر لوگ سب پیارے نہیں ہوتے۔ اس نے چوٹ کی تھی۔ تمہارا اشارہ کہیں میری طرف تو نہیں ہے؟ شہزاد نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ آپ کو یہ شک کیوں گزرا؟ یوں ہی وہ ہنس پڑے تو وہ کچھ بولی نہیں اور بچے کو خاموشی سے دودھ پلانے لگی۔ اسپتال سے امی ابو اسے اپنے گھر لے آئے۔ انہوں نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی۔ 1.25 مہینہ پورا ہونے کو تھا، 2-1 روز میں وہ واپس جانے کو تھی۔ شہزاد ہر روز شام کو اسے اور بچے کو دیکھنے آتے تھے، ان دونوں کے لیے تحفے لاتے، اپنی بے تحاشا محبتوں کا یقین دلاتے، اور ماہا سر جھکا کر رہ جاتی۔ بے شک وہ اس سے بے حد محبت کرتے تھے، مگر ان کی شکی عادت نے اسے توڑ ڈالا تھا۔ وہ اس کی طلاق کی وجہ جاننے کو بے چین تھے۔ بے چین تو وہ بھی تھی، اور اس کی بے چینی اس روز اور بڑھ گئی جب اس نے عثمان حیدر کو اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں اشعر بھائی اور امی ابو سے اچھے ماحول میں بات چیت کرتے دیکھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی تھی، اس پر نظر پڑتے ہی جم سی گئی۔ عثمان حیدر آنکھوں میں صدیوں کی پیاس لیے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر وہ فوراً پلٹ کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے پہ واپس آ گئی۔ دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ بیٹے کو دیکھا، وہ سو رہا تھا اور ماہا کا دل رو رہا تھا، آنکھوں میں جلن ہونے لگی تھی۔ وہ بے دم سی ہو کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت دروازے پر دستک دے کر عثمان حیدر اندر آ گیا۔ ماہا کا دل پلیاں اچھلنے لگا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی، کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ فنکاری تھی، تم سے ملنے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ٹھہرے لہجے میں بولا، طلاق کا داغ دیتے وقت یہ نہیں سوچا تھا؟ وہ جلے کٹے انداز میں بولی، تم میری مجبوری نہیں سمجھو گی ماہا، طلاق میری مجبوری تھی۔ کیا مجبوری تھی؟ وہ پھر تڑکی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی، میں نے جو کچھ کیا تمہاری خوشی کے لیے کیا، میں تقدیر کے ہاتھوں بے بس ہو گیا تھا۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں بولی،
तुम्हारी बेबसी और मजबूरी ने मुझ पर क्या सितम ढाया है, क्या दाग लगाया है मेरे दामन पर, इसका भी कुछ होश है तुम्हें? कैसा सितम? वह हैरान हुआ। जी हाँ, सितम। क्या कमी थी मुझ में, क्या खराबी थी मुझ में? मेरा शौहर रोजाना मुझसे यही सवाल करता है। मैं रोज मरती हूँ। गुस्से से माह का चेहरा लाल हो गया। जवाब दो मुझे। कमी तुम में नहीं माह, कमी मुझ में हो गई थी। खराबी तुम में नहीं, खराबी मुझ में पैदा हो गई थी। तुम तो शबनम की तरह पाक, साफ और बेदाग हो। तुम्हें पता है, यहाँ से जाने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उस्मान हैदर ने रुक कर गहरी सांस ली। एक्सीडेंट? माहा गुस्सा भूल कर उछल पड़ी। हाँ माहा, जबरदस्त एक्सीडेंट। मैं काफी दिन जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। खैर, जिंदगी तो बच गई, मगर मैं मुकम्मल मर्द नहीं रहा। इस सूरत में बताओ, तुम्हें तलाकनामा नहीं भेजता तो क्या करता? मुझे तुम्हारी खुशी की खातिर यह कुर्बानी देनी पड़ी। अब तुम मुझे मुजरिम समझती हो तो ये मेरी बदनसीबी है। मैं ये हकीकत अपने माँ बाप और ताया को बता चुका हूँ। चाहो तो मुआफ कर सकती हो। आखिर में उस्मान हैदर अपनी बात खत्म करके रो दिए। उफ, अब मुझे अपनी सोच पर अफसोस हो रहा है। माँ भी रो पड़ी। इतनी बड़ी कुर्बानी मेरी खुशी की खातिर? वाकई तुम अजीम हो उस्मान हैदर। मैं तुम्हारी अजमत को सलाम करती हूँ। वह फिर रो पड़ी। तुम कहो तो मैं शहजाद का दिल तुम्हारी तरफ से साफ करने की कोशिश करूं? आखिर में उस्मान हैदर ने पूछा। नहीं, उनसे कुछ मत कहिएगा, जाने वह क्या समझें। उसने फौरन कहा। मेरी दुआ है कि शहजाद तुम्हारे साथ खूब मोहब्बत से पेश आए, तुम पर शक ना करे, उनका दिल साफ हो जाए। इतने पढ़े लिखे होकर भी इतनी छोटी सोच। यकीन जानो माहा, मुझे बहुत दुख हुआ है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। मैंने तो तुम्हारी खुशियों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था। मुझे क्या मालूम था कि मेरी यह कदम तुम्हारे लिए इस कदर तकलीफ की वजह बन जाएगी। तुम बताओ माहा, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? आप मेरी बात मान लेंगे? उसने भीगती आंखों से उस्मान हैदर से पूछा। हाँ, शायद इस तरह तुम्हारे साथ की गई ज्यादती की कुछ भरपाई कर सकूं। वैसे तुम जो कहोगी मैं दिल से मानूंगा। कहो, क्या मानवाना चाहती हो? वह नरमी से बोला। आप शादी कर लो। अच्छा, किससे? रमशा बाजी से, उसने झिझकते हुए कहा। देखिए ना, आप ऐसी सारी जिंदगी तन्हा कैसे जिएंगे? आप किसी और लड़की से औलाद की वजह से शादी नहीं कर सकते तो रमशा बाजी से शादी करके यह मामला हल हो सकता है। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। वह भी तमाम उम्र बेवा नहीं रहेंगी। उन्हें भी सहारा मिल जाएगा। उनके बच्चों को बाप की मोहब्बत मिल जाएगी और आपका अकेलापन भी खत्म हो जाएगा। आपका भी घर बस जाएगा। आपको दुख सुख शेयर करने वाली जीवन साथी मिल जाएगी और इस तरह शायद शहजाद का शक और बदगुमानी भी दूर हो जाएगी। कितनी अजीब बात है। उस्मान हैदर धीरे से हंसकर बोला। आपको मेरी बात बुरी लगी क्या? नहीं माहा, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी मेरी सोच कल भी एक थी और आज भी। हम एक ही अंदाज से सोचते हैं। तुम्हारा मशवरा मुझे मंजूर है। मैं आज ही अम्मी अब्बू से कहूँगा कि वह चचा और चाची से बात करें। शादी के बाद मैं रमशा और बच्चों को कनाडा ले जाऊँगा। तब तुम्हारे मियाँ के लिए और भी आसानी हो जाएगी। उस्मान हैदर ने पूरी संजीदगी से यकीन दिलाया। थैंक यू वेरी मच उस्मान, माहा ने कहा। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, उस्मान ने मुस्कुरा कर कहा। तो वह भी मुस्कुरा दी। रमशा बाजी बहुत मोहब्बत करने वाली हैं। वो आपको बहुत खुश रखेंगी। रमशा तुम्हारी बहन है, उसमें ये अच्छाइयाँ नहीं होंगी तो किसमें होंगी? उस्मान हैदर ने उसकी तारीफ की तो वह नजरें चुरा गई। उस्मान हैदर नन्हे उस्मान की तरफ बढ़ा और उसका माथा चूमकर बोला। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत है तुम्हारा बेटा, बिल्कुल तुम पर गया है। नाम क्या रखा है? उस्मान। माहा हंसी तो उस्मान चौंका। क्या ये नाम तुमने रखा है? नहीं, शहजाद ने रखा है। वह सर झुकाकर बोली। ओ माय गॉड, कैसा जालिम शख्स है। उस्मान ने गहरी सांस ली। तुम्हें टॉर्चर करने का नया तरीका? माहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरी वजह से। नहीं उस्मान, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। उसने फौरन उसकी बात काटी। आपने तो मेरा भला चाहा था। हर इंसान अपनी करनी का खुद जिम्मेदार होता है। आपने सही कहा है, किस्मत में यही कुछ लिखा था।
तुम परेशान मत हो महा, इंशाल्लाह अब सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स की एक कॉपी तुम्हें दे दूंगा ताकि वक्त ज़रूरत तुम्हारे काम आ सके। मैं रमशा से जल्द शादी की कोशिश करूंगा, मुतमईन रहो। उसने कई बड़े नोट निकालकर नन्हे उस्मान की मुट्ठी में बंद कर दिए। ये आप क्या कर रहे हैं? महा ने हैरानी से कहा। अपने बेटे को मुंह दिखाई दे रहा हूँ, खुश रहो। वह उसके सर पर हाथ फेरकर कमरे से बाहर निकल गया और वह हैरत और दुख से सोच रही थी कि क्या अब वह शहजाद की मोहब्बत पर यकीन कर सकेगी। उस्मान हैदर जो आज भी उसके लिए अच्छा सोचता है, क्या उसकी मोहब्बत और इज्जत उसके दिल से कम हो सकेगी? नहीं, कभी नहीं। उसके दिल ने कहा। शहजाद अहमद जो मोहब्बत के साथ साथ उस पर शक भी करते थे, उन्हें उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं था और वह शख्स जिससे तलाक के बाद उसे नफरत हो गई थी कितना अजीम निकला था। वह उसे अब कैसे भूल सकती थी। वह इसी में खुश थी कि कोई तो है जो उसकी इज्जत करता है, उसकी पाकीज़गी पर यकीन रखता है और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। यह खुशी के आंसू थे जो अब इसकी आंखों में आए थे। उसे अब शहजाद अहमद के शक की कोई परवाह नहीं रही थी और दूसरे दिन ही शाम तक उस्मान हैदर के घर वालों ने उसका रमशा के लिए रिश्ता मांगा तो फौरन कबूल कर लिया गया, क्योंकि उस्मान हैदर की बेगुनाही उनके सामने आ चुकी थी। उस्मान हैदर ने कुछ भी नहीं छुपाया। यूं रमशा की मर्जी से यह रिश्ता पक्का हो गया। शादी रमशा का FA का रिजल्ट आने तक टाल दी गई। क्या बात है, आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो। रात को शहजाद अहमद उसे लेने के लिए आए तो उसके चेहरे पर फैले खुशी के साए देखकर पूछे बगैर न रह सके। बात खुशी की है। वह नन्हे उस्मान को चूम कर मुस्कुराई। उस्मान हैदर के आने की खुशी है तुम्हें? शहजाद के अंदर का शक फिर बोल पड़ा। हाँ बहुत, और आपको मालूम है रमशा बाजी से उसका रिश्ता भी तय हो गया, जल्द ही शादी भी हो जाएगी। वह खिली पड़ रही थी। रमशा का रिश्ता उस्मान से? और यूं अचानक उन पर हैरत का दौरा पड़ गया। जी जनाब, वह फिर मुस्कुराई। मगर तुम्हारे घर वालों ने यह कैसे गवारा कर लिया कि जिस शख्स ने उनकी एक बेटी को तलाक दी थी उसके पल्ले दूसरी बेटी बांध दें? उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी। तलाक की असल वजह मालूम हो गई और उस्मान बेकसूर साबित हो गया तो सब खुशी खुशी मान गए। वह चहक रही थी। तो कसूर तुम्हारा था? शक के कीड़े ने फिर उनके दिमाग में काटा। इस बेएतबार शख्स पर उसे बेहद गुस्सा आया तो भड़क उठी। आप यही समझते रहे, जबकि कसूर हम दोनों में से किसी का भी नहीं था, बल्कि कसूर किस्मत का था। महा ने एक एक बात बताकर उस्मान की मेडिकल रिपोर्ट्स उन्हें थमा दी। रिपोर्ट्स पढ़कर मारे शर्मिंदगी के शहजाद का सर झुक गया, चेहरा पीला पड़ गया। अपनी पाक बीवी जिसे वह बहुत ज़्यादा चाहते थे, बस उस पर शक करके वह खुद अपनी नज़रों में गिर गए थे, जलील हो गए थे। उन्होंने अपनी कद्र कीमत खुद खो दी थी। अब वह लाख उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएं, सच्चे साबित नहीं हो सकते थे। उन्होंने शक करके अपनी सच्ची मोहब्बत खुद खोटी कर दी थी। अब शर्मिंदगी और पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहा था। महा अपने प्यारे शौहर को सर झुकाए शर्मिंदा शर्मिंदा देखकर खुद अंदर ही अंदर दुखी हो रही थी। वह उससे नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रहे थे। ज़रा नज़रें नीचे किए अफसोस से हाथ मल रहे थे। वह शख्स जिसे वह दुनिया का बदतरीन इंसान समझ रहे थे, बाजी मारकर बहुत बुलंद हो गया था और वह खुद बहुत छोटे हो गए थे। यह एहसास ही उनके गुनाह की सबसे बड़ी सज़ा थी जो उन्हें उम्र भर काटना थी। नहीं, मैं इसकी भरपाई करूँगा। महा को इतनी मोहब्बत, इतना प्यार दूँगा, कभी शक नहीं करूँगा तो वह खुद एक दिन मुझे माफ़ कर देगी, क्योंकि यह एक अच्छी और नेक दिल औरत है। उन्होंने सोचा, पक्का इरादा किया और महा को लेकर चुपचाप घर की तरफ चल दिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।